السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ مولانا العظیم محبت عقیدت الفت اور پیار سے درود پاک صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو اللہ رب العزت سب سے پہلے جنت البقیع والوں کو زندہ فرمائے گا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے مدینہ طیبہ آ کر مرے گا قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب اہل ایمان کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے اور ہمیں موت بھی اسی پاکیزہ سرزمین پہ عطا فرمائے۔ ساری کائنات دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی بے نیازی، لوگ اٹھیں گے کوئی سایہ تک نہ ہوگا، سورج بالکل نزدیک ہوگا، پسینوں میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کندھوں تک، اور اپنے ہی پسینے میں غوطے لگا رہا ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، حیران پریشان، گویا آنکھیں جو ہیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں، جیسے میں اپنی زبان آنکھیں تاڑے لگی ہیں، اوپر اٹھی ہیں، اللہ ذوالجلال جلال میں ہے، آواز آئے گی لمن الملک اليوم، اے دنیا میں غرور کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، بادشاہی کرنے والوں، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی بول تک نہ سکے گا، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اسی اللہ کے لیے ہے جو واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے۔ بادشاہت قیامت کے دن فقط اللہ کی، آج بھی اللہ کی ہی بادشاہت ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اختیار دے دیا ہے، کوئی غرور کرتا ہے، کوئی تکبر کرتا ہے، کوئی کرسی پہ بیٹھ کے اتراتا ہے، لیکن اس دن کسی میں بولنے تک کی ہمت نہ ہوگی، بولنے کی مجال تک نہ ہوگی، لوگ اٹھیں گے اسی طرح بے لباس اٹھیں گے، اسی طرح وہی حالت ہوگی جو پیدا ہوتی ہے، ہین پر سلامتی والی بھی ہو جا، گل و گلزار ہو جا، وہ آگ آپ پر گل و گلزار ہو جاتی ہے، آپ آگ میں مسکرا رہے ہیں، آگ جل رہی ہے، وہ ان کے لیے تو گلزار ہو گئی ہے۔ انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ وہ طویل دن ہوگا، لوگ حیران و پریشان ہوں گے،
मारे पारे फिर रहे होंगे, सुझाई न देगा कि क्या करें। एक दूसरे से कहेंगे अल्लाह बड़े जलाल में है, क्या करें, किस तरह जाएं। जैसे आज किसी को हवालात में बंद कर दिया जाता है, पुलिस वाले सुबह शाम उसे जूते लगाते हैं। अब वो कहता है इससे तो बेहतर मुझे जेल में ही डाल दो, मुझे यहाँ क्या सजा दे रहे हो, मुकदमा भी नहीं चल रहा, मुकदमा चलाओ, मुझे फारग करो, जो सजा देनी है दे लो, यहाँ रोजाना मुझे क्या है। गोया पहले 25,000 साल हवालात है, वहां कोई पूछने वाला नहीं होगा, सख्त अजाब तक होगा। हाँ, उस 25,000 साल अरसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू फिर लोगों की दिलों में डालेगा। डालने वाला भी वही अल्लाह है कि आज अल्लाह जलाल में है, आओ किसी को सिफारिशी तलाश करो। कोई तो ऐसा हो, आज सिफारिश तलाश की जाती है, उस दिन भी सिफारिश काम आएगी। आइए किसी सिफारिशी को तलाश करो। तल्क वाला तो देखो, हाँ हाँ चलो चलो, किसके पास चलते हैं, आओ आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, वो हमारे अब्बा हैं। हम भूल जाएंगे सारे कि उस दिन सवाए हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई शफाअत नहीं कर सकेगा। सबसे पहले हमारे नबी करेंगे, लेकिन अल्लाह ज़हनों से निकाल देगा। ज़हनों से निकाल कर पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे अब्बा जान देखिए औलाद कितनी है, क्या हालत हो गई है, जिस्म देखिए क्या हालत है, सूरज देखिए क्या है, आप कुछ तो रहम कीजिए, हमारे अल्लाह से अर्ज कर दीजिए या अल्लाह इसको खत्म कर दे, हिसाब ले, हमें जहां भेजना है भेज दे, लेकिन अब पाक परवरदिगार इस सख्ती को, इस अज़ाब को तो खत्म कर दे। आदम अलैहिस्सलाम का एक ही जवाब आएगा, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। आज तो मुझे भी अपनी जान की फिक्र है, मुझे भी अपनी जान की फिक्र है, जाओ किसी और के पास चले जाओ, बाकी तो किसी की कोई हैसियत नहीं है। हाँ जी अब्बा जान किसके पास भेजते हैं, जाओ नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, उनको अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया है, उनके लिए कश्ती बनी है, उनको जो कश्ती में बैठ गया वो सलामत रहा, बाकी सारे गर्क हो गए। लोग दौड़े दौड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे, कितनी दूर होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। अव्वलीन व आखिरीन इकट्ठे किए जाएंगे, सबको मैदान हशर में इकट्ठा किया जाएगा। ये छोटा सा मैदान तो नहीं होगा जो मील 2 मील में खत्म हो जाएगा, या 10-15 मील में खत्म हो जाएगा, या 100-200 मील में खत्म हो जाएगा। अव्वलीन व आखिरीन सारे के सारे उन्हें दोबारा जिंदा किया जाएगा। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द, अल्लाह जमीन ही बदल देगा, जमीन ही बदल दी जाएगी। इतनी बड़ी जमीन होगी कि जहां देखोगे कोई ऊंच नीच नहीं है, एक जैसी जमीन है। देखोगे सामने नजर आ जाएगा, बाहर आदम अलैहिस्सलाम नजर आएंगे, नूह अलैहिस्सलाम आएंगे, उनके पास जाएंगे, तलाश करते करते उनको पा लेंगे। ऐ नूह अलैहिस्सलाम, ऐ हमारे दूसरे अब्बा जान, आप आज हम पे करम कर दीजिए, आज हम पे मेहरबानी कर दीजिए, आज शफकत कर दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ मांग दीजिए कि अल्लाह ताला मेहरबानी करे, इस अजाब से नजात दिला दे, हमसे हिसाब ले, जहां भेजना है भेजे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, और मुझे तो अपनी जान की फिक्र है, मुझे अपनी जान की फिक्र है, जाओ किसी और के पास चले जाओ। किसके पास जाएं? आदम अलैहिस्सलाम के पास गए, उन्होंने भी इनकार कर दिया, आपके पास भेजा, अब आप आए हैं, आप भी किसी और के पास भेजते हैं। फरमाते हैं वाओ, मैं तुम्हें खलीलुल्लाह बताता हूँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जिनके लिए आग को गुलजार कर दिया गया, जिनकी कुर्बानी कबूल कर ली गई, और जिन्होंने हाथों अल्लाह ने काबातुल्लाह बनाया है। आज तक काबा में रौनकें हैं, काबा में तवाफ हो रहा है, इसका स्वाद किसी और मिले को मिले या ना मिले बात की बात है, सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो इसका सवाब मिलता है, क्योंकि उन्होंने ही अल्लाह के हुक्म से काबा बनाया। बड़ी शान वाले हैं, जाओ। आज सारे लोग वहां तलाश करते करते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करेंगे, जनाब अल्लाह देखिए किस
जलाल में है। देखो हमारे पास क्या है, सूरज कहां तक आ गया है, गर्मी में हमारी जान भी नहीं निकल रही है, कुछ तो इल्तिजा कीजिए, अल्लाह से अर्ज कर दीजिए, अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह मेहरबानी कर दे, हमारा हिसाब ले ले, जहां भेजना है भेज दे। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान से भी आएगा, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, और मुझे तो अपनी जान की फिक्र है, मुझे अपनी जान की फिक्र है, जाओ किसी और के पास चले जाओ। जी हम तो आदम के पास गए अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के पास गए, तीसरे आपके पास आ रहे हैं, अब किसके पास भेजते हैं? आवाज आएगी, जाओ मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, बड़े जलीलुल कदर नबी हैं, बड़े ही अजीम नबी हैं, उनके पास चले जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास सारे लोग आएंगे, अपने भी आएंगे, बेगाने भी आएंगे, मोमन भी आएंगे, काफिर भी आएंगे, मानने वाले भी आएंगे, न मानने वाले भी आएंगे, सब उनके पास आ जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज करेंगे, ऐ मूसा आपकी बड़ी शान है, अल्लाह ने आपसे तूर पे कलाम किया है, आपके लिए तो अल्लाह ने ये मेहरबानी की है, ये मेहरबानी की है, मेरे कुलज़म को पाट दिया, आपके लिए चश्मे जारी हो गए, आप जिधर इशारा करते थे बहारें हो जाती थी, आज हमारे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह से इल्तिजा कीजिए। वहां से भी आवाज आएगी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, मुझे तो अपनी जान की फिक्र है, मुझे अपनी जान की फिक्र है, किसी और के पास जाओ। जी हमें किसके पास भेजते हैं? जाओ ईसा इब्ने मरियम के पास चले जाओ, बड़ी शान वाले रसूल हैं, बड़ी शान वाले नबी हैं, सारे के सारे लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ जाएंगे। जब ईसा अलैहिस्सलाम को तलाश करते करते नामालूम कहां होंगे, कितना सफर तय करके वहां पहुंचेंगे, जब वहां पहुंचेंगे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते ही हम सब लोग अर्ज करेंगे, ऐ ईसा इब्ने मरियम, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, आप हमारे लिए रब से सिफारिश कर दीजिए, शफाअत कर दीजिए, मेहरबानी कीजिए, उस अल्लाह से अर्ज तो कर दीजिए कि अल्लाह ने आप पर बड़ा करम फरमाया है, बिन बाप के पैदा किया है, मुर्दों को आप जिंदा कर देते थे, दिल की बातें आप जान जाते थे, आप कोड़ वालों का कोड़ खत्म करते थे, नाबीनाओं की बीनाई खत्म करते थे, आज तो मेहरबानी कीजिए। आप फरमाएंगे, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, और मुझे अपनी जान की फिक्र है, मुझे अपनी जान की फिक्र है, किसी और के पास चले जाइए। और जी किसके पास भेजते हो? हम तो इतने फिर के आए, आदम के पास, नूह के पास, इब्राहीम के पास, मूसा के पास, अब आपके पास अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इन जलीलुल कदर नबियों के पास से होके आए हैं, अब इस किसके पास भेजते हैं? आप फरमाएंगे, अब मैं तुम्हें एक दर ऐसा बताता हूं जिस दर पे जाने वाला कभी कोई महरूम नहीं रहा करता है। जाइए जाइए उनके पास। जी क्या है? हजूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन हैं, उनकी बारगाह में चले जाइए। उनके पास जाने के लिए वहां जो भी जाता है महरूम नहीं रहता। सारे तलाश करते करते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। यहां हमारे असलाफ एक बात लिखते हैं, उसको भी सुनते जाइए। कहते हैं जिनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरा रिश्ता है, गहरा ताल्लुक है, ये ताल्लुक बनते बनता है। वो तो लजपाल नबी है ना, लेकिन ताल्लुक बनते बनता है। आप किसी को रोजाना फोन करें, चाहे ताल्लुक ना भी हो, आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुक बनता है कि नहीं बनता? रोजाना खैरियत पूछे, जी खैरियत है, ठीक है, ताल्लुक बनता है कि नहीं बनता? इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोजाना दरूद पाक और सलाम का तोहफा पेश करें, ताल्लुक बनता है, ताल्लुक बनता है। आपके रोज़ा अतर पर मुतय्यन फरिश्ते